Hello everyone, this is Sejal Sharda, NCLEX Past Registered Nurse. सो जो ਅੱਜ अपना टॉपिक है वो हैगा इंट्रोडक्शन टू न्यूरोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू न्यूरोलॉजी जो यूनिट हैगी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਡੈਲੀਰੀਅਮ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਇੰਜਰੀ, ਮਾਇਸਥੇਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ, ALS, ਪਾਰਕਿੰਸਨ, ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਸਕੋਰੀਆ, ਸਟ੍ਰੋਕ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ICPN, ਮੈਨਿੰਜਾਈਟਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੈਥੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੋਈ ਵੀ NCLEX ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨੋਰਸੈਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਨਾਟਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜਸਟ ਬੇਸਿਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਓਕੇ, ਸੋ ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ introduction to CNS. जो अपना nervous system है two parts which divided है, the one is CNS, the other one is PNS. Okay, so the CNS is central nervous system and the PN is peripheral nervous system. Central nervous system with spinal cord हुंदी है अपनी, ठीक है, अपना brain हुंदा है, ते cranial nerve 1 and 2 हुंदी है। one cranial nerve is olfactory and the other one is optic nerve. जो अपना PNS हुंदा है peripheral nervous system, उस तो बाद जिन्नियां भी 3rd तो लेके 12th तक cranial nerves होंगियां वो सारियां PNS विच आ जाणगियां, ठीक है। ते उस तो बाद PNS विच होर की हुंदा है, कुछ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਰੋਨਸ। ਹੁਣ ਨਿਊਰੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਊਰੋਨਸ। ਨਿਊਰੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੇ 3 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਪਲਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਓਕੇ, ਇਹ ਇੰਪਲਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੇ ਇੰਪਲਸ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਅੱਗੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਇੰਪਲਸਿਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਿਊਰੋਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਸ ਔਨ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਨਿਊਰੋਨਸ। ਸੋ ਨਿਊਰੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦ ਵਨ एक्साइटेबिलिटी मतलब कि अबिलिटी टू जनरेट अ नर्व इंपल्स, कि पहले इन्होंने कोई नर्व इंपल्स नु जनरेट करना है। आफ्टर दैट द कंडक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी टू ट्रांसमिट एन इंपल्स, ठीक है, ट्रांसमिट करना है। एंड अदर वन इज इन्फ्लुएंस, मतलब कि हुण इन्होंने ट्रांसमिट कर ली, जनरेट भी कर ली, बट एक न्यूरोन ने दूसरे न्यूरोन ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ कि हाँ मैं इंपल्स जनरेट कर ली, हूँ तू भी जनरेट कर, तू भी अगे पास ऑन कर। सो एक न्यूरोन ने दूसरे न्यूरोन ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਪਲਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੋਨਸ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਨਿਊਰੋਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਰੋਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर की है, न्यूरोन का स्ट्रक्चर है। न्यूरोन के जो छोटे छोटे है ना, ये की है, एक्सोन्स है जोड़े एवें बने हुए हैं, ठीक है। ये की है एक्सोन्स, जी अंदर जोड़े आंदे है सैल्स कुछ बने हुए ना छोटे छोटे, देखो ये जोड़े सैल्स है इन्हों की बोलते हैं आप, श्वॉन सैल्स, जो अंदरला सेंटर पोर्शन है। ओके, जी बाहरली शीत है ना, लाइक जी लाइनिंग है, इन्हों आप बोलते हैं माइलिन शीत, आ मैंशन की हुई है। ओके, तो ये पूरा हो गया, ये एक एक्सोन हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो पूरा की है न्यूरोन। तो जी ये वाली चीज़ है अपने को, ये की है साइनैप्सिस, ये की करती है एक तरीके का ब्रिज का काम करती है। एक न्यूरोन, फिर साइनैप्सिस आ गई, फिर उसके बाद दूसरा न्यूरोन, फिर उनकी साइनैप्सिस आ गई, फिर तीसरा न्यूरोन, एवें किन्ने सारे न्यूरोन्स की होंगे एक दूसरे नाल इंटरकनैक्टेड होंगे है। जिवें आपां कह दईए कि जो एक्सोन्स होंगे ना, एक होगी चेन, होगी की होगी, चेन होगी, ठीक है। तो साइनैप्सिस की हो गया, ब्रिज हो गया। ओके, जो कि हुंदा है एक न्यूरोन तो दूसरे न्यूरोन विच की हुंदा है, कम्युनिकेशन विच हेल्प करदा। ओके,
ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਗਜ਼ੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੀਐਨਐਸ ਤੇ ਪੀਐਨਐਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਈਲਿਨ ਸ਼ੀਥ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ, ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਲਿਪਿਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੈਟ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਫॉर द ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਸਸ। ਮਾਈਲਿਨ ਸ਼ੀਥ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਸਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਪਲਸਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਆਈ ਐਮ ਰੀ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਇਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ एग्जाम विच। ओके, एनाटॉमी दे सिर्फ BFUHS विच क्वेश्चन आते होंगे, वो भी मेन वाले, वो मैं तुहानू दस दूंगी जो इंपॉर्टेंट होएगा, वरना कुछ भी नहीं आना, जस्ट आप समझना कि हुंदा की है। उस बाद आ गया अपने को ग्लायल सेल्स। जो ग्लायल सेल्स होंगे वो की करते हैं, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किनू, न्यूरोन्स नू। ओके, क्योंकि न्यूरोन्स भी एक डेलीकेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अपन नू जरूरी है अपने ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग लई, बट अगर न्यूरोन होएगा ही नहीं तो फिर अपनी ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग भी नहीं होएगी। तो उन्होंने कौन प्रोटेक्ट करता है, ग्लायल सेल्स, किवें उन्होंने नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ओलिगोडेंड्रोसाइट। सो व्हाट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये अपन कुछ भी याद रखने नहीं जरूरत हैगी, एस्ट्रोसाइट्स वगैरह की होंगे कि नहीं होंगे, हुण आप याद रखनी है चीज़, ओके रखनी है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आप याद रखनी है क्योंकि BFUHS विच ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ते क्वेश्चन आया सीगा। सो एक ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ठीक है। So oligodendrocytes ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, oligodendrocytes are the specialized cells that produce the myelin sheath of a nerve fiber in the CNS and are primarily found in the white matter of CNS। So oligodendrocytes ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੋਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਈਲਿਨ ਸ਼ੀਥ, ਬਟ ਮਾਈਲਿਨ ਸ਼ੀਥ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਓਲੀਗੋਡੈਂਡਰੋਸਾਈਟਸ ਤੋਂ। ਮਾਈਲਿਨ ਸ਼ੀਥ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਲੀਗੋਡੈਂਡਰੋਸਾਈਟਸ, ਐਂਡ ਓਲੀਗੋਡੈਂਡਰੋਸਾਈਟਸ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, CNS ਦੇ ਵਾਈਟ ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CSF ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਪੈਂਡਾਈਮਲ ਸੈਲਸ ਤੋਂ, ठीक है। जो एपेंडाइमल सैल्स ने, ठीक है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स विच वो की करते हैं, वो CSF की सिक्रीशन विच की करते हैं, हेल्प करते हैं, एड मीनस हेल्प करते हैं। सो अपने को दो मेन चीज़ां ने, द वन इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ and are present in white matter of CNS, and the other thing is ependymal cells जो की करते हैं which helps in secretion of CSF, that is cerebrospinal fluid। Now the next thing is synapses। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ synapses ਦਾ structure ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਗਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਈਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਇਨੈਪਟਿਕ ਕਲੈਫਟ। ਓਕੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਲੈਪਟਿਕ ਕਲੈਫਟ। ਇਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਮਸ਼ਰੂਮ। ਓਕੇ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਵਰਗੀ ਇਮੇਜ ਆਂਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਨੈਪਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਜੰਕਸ਼ਨਲ बिटवीन टू न्यूरोन्स, मतलब कि दो न्यूरोन्स है, एक न्यूरोन हो गया, एक दूसरा न्यूरोन हो गया, ठीक है, जो इनके अंदर दा ब्रिज होएगा ना, जिहदे नाल कम्युनिकेशन हो रही होगी, उन्होंने आपां की कहने आ, साइनैप्सिस, ठीक है। की है कि मान लो ये एक न्यूरोन है, ठीक है, ये दूसरा न्यूरोन है। ओके, सेंटर विच की बने हुए हैं, सिनैप्सिस बने हुए हैं। ड्राइंग मेरी एवं रहन दो, ठीक है, ये सिनैप्सिस बने हुए हैं। तो सिनैप्सिस की करते हेल्प करते हैगे है कम्युनिकेशन विच। कम्युनिकेशन मीनस कि मतलब कि इंपल्स नू की करते हैं, एक न्यूरोन तो दूसरे न्यूरोन तक की करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। इट इज अ पॉइंट इन विच द नर्व इंपल्सिस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरोन टू अनदर, मतलब कि एक न्यूरोन तो दूसरे न्यूरोन तक किवें ट्रांसमिट होंदियां ने इंपल्सिस विद द हेल्प ऑफ साइनैप्सिस। ओके, साइनैप्सिस किहदे नाल कनैक्ट होंदियां ने, एक्सोन्स नाल। सो द नेक्स्ट थिंग इज न्यूरोन। देखो सिनैप्सिस नू भी, सिनैप्सिस ने अगे की करनी ने, इंपल्स नू ट्रांसमिट करना है फ्रॉम द वन न्यूरोन टू अनदर, बट सिनैप्सिस नू ट्रांसफर कर, जिवें आपां कह दईए कि गड्डी नू चलाउण लई आपां नू पेट्रोल या डीजल की जरूरत पैंदी है, उवें ही सिनैप्सिस नू चलाउण लई आपां नू न्यूरोट्रांसमिटर्स की जरूरत पऊगी, ठीक है। न्यूरोट्रांसमिटर्स की हुंदे, कैमिकल हुंदा एक जो साइनैप्टिक क्लैफ्ट, जो यह क्लैफ्ट है इहदे विच होणगे। ओके, जो की करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रांसमिशन करने विच इंपल्सिस दिया। एंड देन द जिहड़े न्यूरोट्रांसमिटर्स होंदे जिवें कि डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, एसिटाइलकोलिन हो गया। ओके,
ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰਸ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਨੈਪਟਿਕ ਕਲੈਫਟ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਔਨ ਹੋਵੇ ਇੰਪਲਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ तो दूसरा रस्ता, एक रस्ता हो गया न्यूरोन 1, दूसरा रस्ता हो गया न्यूरोन 2, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅ ਕਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿਨੈਪਸਿਸ। ਓਕੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਨੈਪਟਿਕ ਕਲੈਫ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਨੈਪਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਪਲਸਿਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਊਗੀ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰਸ। ਸੋ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। The next thing is the spinal cord. So spinal cord ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਫੋਰਾਮਨ ਮੈਗਨਮ। what is foramen magnum? this is the important thing ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਚੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫੋਰਾਮਨ ਮੈਗਨਮ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਹਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਫੋਰਾਮਨ ਮੈਗਨਮ। The next thing is the gray matter। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ CNS ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, the one is white matter and the other one is gray matter। ਸੋ ਜੋ gray matter ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? it contains the cell bodies of voluntary motor neurons, preganglionic autonomic motor neurons and association neurons। ਹੁਣ gray matter ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਵੋਲੰਟਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੁਦ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਗ੍ਰੇ ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, दूसरा क्या आ गया अपने को? वाइट मैटर। जो वाइट मैटर होंगे वो की होंगे? इट कंटेन्स द एक्सोन्स ऑफ असेंडिंग सेंसरी एंड द डिसेंडिंग सेंसरी। ओके, हुण आपां ग्रे मैटर विच हो गया वो वाला सारा सिस्टम जो आपां खुद अपनी मर्जी नाल करते हैं। जिवें मैं बोल रही हूँ, मैं खुद अपनी मर्जी नाल कुछ खाऊंगी, ठीक है, मैं अपना अपना हाथ हिला रही हैं, ठीक है, या मैं कुछ भी कर रही हूँ जो अपनी मर्जी नाल कर रही हैं, ठीक है, जो मेरी चीज़ बॉडी के कंट्रोल विच नहीं हैगी, वो हर एक सिस्टम कित्थे प्रेजेंट हुंदा है? ग्रे मैटर विच। वाइट मैटर विच अपने कोल दो चीज़ां हुंदियां, द वन इज असेंडिंग सेंसरी एंड द अदर वन इज डिसेंडिंग मोटर फाइबर्स। सो असेंडिंग ते डिसेंडिंग की मतलब हुंदा? देखो, वन इज असेंडिंग ट्रैक एंड द अदर वन इज डिसेंडिंग ट्रैक। ठीक है, असेंडिंग मतलब कि आपा जो पढ़िया सीगा हुण तक छोटे हुंदे, तो असेंडिंग मतलब कि ऊपर नूं जाना, डिसेंडिंग मीनस नीचे नूं आना। सो असेंडिंग दा मतलब की हुंदा है फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। ठीक है, मतलब कि बॉडी नीचे है, ब्रेन ऊपर है अपना। ठीक है, इंपल्सिस कितने जाएंगे? फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन एंड द अदर थिंग इज डिसेंडिंग ट्रैक। सो एक ही होंगी है फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी। इंपल्सिस कितों आएंगे? अपने ब्रेन तो लेके बॉडी तक। ठीक है, हुणे असेंडिंग ते डिसेंडिंग नूं समझण वास्ते आपां नूं पढ़ना पएगा पहला रिफ्लैक्स। देखो आ रिफ्लैक्स लिखिया होया, आ रिफ्लैक्स लिखिया होया। रिफ्लैक्स की हुंदा है? देखो, अगर आप कोई काम करते हैं, ओके, मान लो आप किचन में कोई काम कर रहे हैं या वैसे ही आप कोई काम कर रहे हैं, तो अपना की हो गया? अपना किसी गरम गरम बर्तन ते अपना हाथ लग गया। ओके, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होएगा कि आप फटाफट अपना हाथ के कर लांगे, पीछे कर लांगे। ओके, वॉलंटरी रिस्पॉन्स के होएगा? ये अपने अगर कोई सेंसेस विच प्रॉब्लम होएगी तो आप उस गरम बर्तन ते अपना हाथ लगा के रखांगे। बट आप नॉर्मल हाँ, ठीक है, ना अपने सेंसेस विच कोई प्रॉब्लम हैगी है, ना अपने वैसे कोई ब्रेन विच कोई प्रॉब्लम है। अपना की होएगा कि अगर आप कोई गरम गरम बर्तन ते हाथ लगाया या किसी गरम गरम पानी दे विच आप अपना हाथ पा लिया, तो अपना रिस्पॉन्स होएगा कि आप फटाफट हाथ अपना पीछे करते हैं। एक ही होंगे पूरा होंगे, इनू आप कहते हैं इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। रिफ्लैक्स की होंदी है कि जदों कोई स्टिमुलस आवे, दैट इज अगर कोई पेनफुल स्टिमुलस आवे, तो जिहड़ा अपना रिस्पॉन्स हुंदा है हमेशा वो की हुंदा है? इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स हुंदा है। जिवें कि मान लो कि तुसीं सो रहे हो, ठीक है, तुहाडा कज़न आया और तुहानूं थप्पड़ मारता, तुसीं उहनूं बोलोगे ओके खिज के, और जो रिस्पॉन्स होएगा थोड़ा इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होएगा, बिकॉज यू वर स्लीपिंग पीसफुली एंड समबडी केम एंड डिस्टर्ब योर स्लीप पैटर्न। ओके, सो ऑब्वियसली जो थोड़ा रिस्पॉन्स होगा इनवॉलंटरी होएगा, थोड़ी अपनी मर्जी विच नहीं होएगा। ओके, सो रिफ्लैक्सिस की होंदियां ने जो अपना इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स आंदा है। हुण देखो, एक आपां पढ़िया सीगा असेंडिंग ट्रैक। ठीक है, असेंडिंग ट्रैक का मतलब की सीगा कि मैसेजेस आ रहे हैं
जो कि बॉडी तो आ रहा है ब्रेन तक। ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कुछ भी लिखा कुछ नहीं याद रखने की जरूरत। असेंडिंग ट्रैक ਵਿੱਚ ਕੀ आंदा है कि मान लो कि अगर मेरा हाथ किसी गर्म भांडे ਨੂੰ टच कर गया, ठीक है, तो इंपल्सिस फटाफट कितने गई है मेरी बॉडी टू ब्रेन, कि मैं अपना बॉडी पार्ट गर्म भांडे ਨੂੰ टच किया, ये वाली इंपल्स कितने गई फटाफट विद इन सेकंड्स मेरी बॉडी टू ब्रेन विच गई। ठीक है, किवें गई, क्योंकि मेरी स्किन ते की प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ओके की हुंदा है कि मेरी स्किन दे उत्ते, अपनी स्किन दे उत्ते रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अगर मैं फटाफट किसी गर्म भांडे नूं टच किया, मैं अपना हाथ पीछे खिंच लूंगी। पीछे किवें खिंचूंगी, क्योंकि मेरे ब्रेन ने पहला रिस्पॉन्स किया। इनू आपां दो पार्ट्स विच डिवाइड करांगे। देखो, एक पार्ट होएगा कि मैं टच किया, पहला कि टच द हॉट यूटेंसिल। ठीक है, मैं टच किया हॉट किसी यूटेंसिल नूं। ओके, जो मैं टच किया, ठीक है, मैं की करांगी, ए वाली इंपल्स कित्थे गई, इट ट्रांसफर इंपल्स टू ब्रेन। ठीक है, जो मैनू गरम गरम फील होया या जेड़ा भी मैनू अगर कोई पेन हुई या जेड़े भी मेरे कोई रेडनेस हुई, फटाफट उस पॉइंट ऑफ टाइम ते फटाफट मेरे ब्रेन नू सेंड होगी। ठीक है, उस तो बाद की होया, उस तो बाद ब्रेन ने की किया, ब्रेन ट्रांसमिट इंपल्स टू बॉडी बाय विड्रॉइंग हैंड। हुण मैं की लिखा होया, उत्थे बॉडी लिखा होया, बॉडी बाय विड्रॉइंग हैंड। ठीक है, की लिखा हुआ है, देखो असेंडिंग ट्रैक की होएगा कि अपनी इंपल्सिस जा रही ने फ्रॉम द बॉडी टू ब्रेन। अगर मैं किसी गरम गरम भांडे नू टच किया, ओके, तो की हो गया फटाफट इंपल्सिस कितने चल गया विद इन द सेकंड की ब्रेन विच, कि ये भांडा ये जी चीज़ मैं टच किया वो गर्म है, वो पेनफुल है। उस तो बाद ब्रेन ने की किया, फटाफट ट्रांसमिट की इंपल्स कि मैनू अपना हाथ भांडे ते नहीं लगा के रखना चाहिए, मैं फटाफट विड्रॉ करना। विड्रॉ मतलब कि पासे करना अपना हाथ उस गरम गरम चीज़ तो। ओके, ये हुंदी है पूरी असेंडिंग ते डिसेंडिंग ट्रैक। जिहड़ा उस टाइम ते फटाफट मैं अपना हाथ पिछे नू करूंगी, ओनू कहने आपां रिफ्लैक्स। जिहड़ा रिफ्लैक्स हुंदा वो हुंदा इनवोलंटरी। हुण देखो, वैसे रिफ्लैक्स हुंदा इनवोलंटरी रिस्पॉन्स, बट जिहड़ी ए वाली पल्सेस ने इनवोलंटरी भी हो सकती है, वोलंटरी भी। जिवें कि मान लो कोई गंदी सीट है, ठीक है, आपां किते बाहर जा रहे हैं, आपां किते रस्ते विच बैठना है, ओके, आपां थक गए, आपां किते बैठना, उत्थे मिट्टी वाला एरिया है। हुण तुसीं पहलां की देखोगे कि मिट्टी वाला एरिया है, वो पूरी मिट्टी मिट्टी बैठी हुई है सीट उत्ते, तो तुसीं उत्थे बैठना है। तुसीं की करोगे, तुहाडी बॉडी तो ब्रेन विच गई चीज़ कि उत्थे मिट्टी है ते मैं नहीं बैठना, तो तुहाडे ब्रेन ने काम किया कि उसनू मैं साफ करके उन्हें मैं झाड़ के बैठ सकती हाँ। सो जिहड़ी चीज़ उत्थे उपर अपने ब्रेन तक, जिहड़ी भी चीज़ आपां कुछ करते हैं, आपां कुछ फील करते हैं अपनी बॉडी पार्ट्स नू, ब्रेन तो कुछ भी ना कहो, जिहड़ी चीज़ अपनी बॉडी पार्ट कोई फील करती है, कोई टच करती है, कोई सेंसिस अपन नू फील होंदियां ने, वो सारियां पहले ब्रेन ते जान गया विद द हेल्प ऑफ असेंडिंग ट्रैक। एक्सक्यूज मी। उस तो बाद असेंडिंग ट्रैक तो सारी इंपल्सिस अपनी बॉडी टू ब्रेन चली गई, फिर वो ब्रेन की करूगा इंपल्स मतलब कि रिस्पॉन्स जनरेट करूगा किवें, वाया डिसेंडिंग ट्रैक। ओके, ते अगर ये सारा प्रोसैस अगर अपने को इनवोलंटरी होवे तो ओह की बन जाता है, रिफ्लैक्सिस बन जांदियां ने। हुण आ गया अपने को ब्रेन। सो जो ब्रेन हुंदा है वो अपने को कुछ पार्ट्स विच डिवाइड हुंदा है। ठीक है, कुछ पार्ट्स विच किवें डिवाइड हुंदा है, देखो हुण आ गया अपने को अब पढ़ना है ब्रेन। ठीक है, सो जो ब्रेन होएगा अपने को कुछ पार्ट्स विच डिवाइड होएगा। जब आप पहली चीज पढ़ांगे वो पढ़ांगे आप सेरिब्रम, कि सेरिब्रम की हुंदा है। ठीक है, देखो सेरिब्रम जो ब्रेन होंगे ना वो बहुत सारे पार्ट्स विच डिवाइड होंगे, सेरिब्रम, सेरिबेलम, हेमिस्फेयर, ठीक है, एवरीथिंग। सो पहली आप चीज पढ़ांगे दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम होंगे वो ना दो पार्ट्स विच डिवाइड होंगे। ठीक है, जिवें अपनी बॉडी का एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है, दो साइड्स है ना, द राइट वन एंड द लेफ्ट वन। ओके, ओवें ही सेरिब्रम टू पार्ट्स विच डिवाइडेड, द राइट हेमिस्फेयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फेयर, दैट इज द राइट एंड द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ओके, बट हुण अपने सेरिब्रम दिया चार लोब्स हुंदियां ने। ठीक है, 4 लोब्स। एक हुंदी है लोब अपनी आईज ते जमा ऊपर, एक हुंदी है लोब अपनी ईयर्स ते बिल्कुल ऊपर, एक हुंदी है थोड़ी जी अगे लाइक दिस पोर्शन ते एक हुंदी है लास्ट ते अपने ऑप्टिक नर्व ते।
ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ 4 ਲੋਬਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋਬ ਆਪਣੀ ਆਈ ਦੇ ਜਮਾ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਰੰਟਲ ਲੋਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਈਅਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰਾਈਟਲ ਲੋਬ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਲੋਬ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਲੋਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ occipital ਲੋਬ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਿਹੜੀ ਲੋਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੋਬ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਇੰਜਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੋਬ ਅਫੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਰੰਟਲ ਲੋਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟਲ ਲੋਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਈ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਦੀਆਂ ਵੋਲੰਟਰਲੀ, याद रखना है, नॉट ऑल मूवमेंट्स, जस्ट वोलंटरी मूवमेंट्स। वोलंटरी मूवमेंट्स मतलब कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈ ਦੇ मूवमेंट ਆਪਾਂ खुद करते हैं, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਹੁਣ ਹਿਲਾਉਂਗੀ, ਦੇਖੋ है ना, ਇਹ ਮੈਂ खुद अपनी मर्जी ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਦੀਆਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਮੋਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਰੰਟਲ ਲੋਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੰਟਲ ਲੋਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਿਟੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੰਟਲ ਲੋਬ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਧਾਓ, ਕਦੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਧਾਓ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓ ਆਪਣਾ। मतलब कि जिन्नी भी अपनी इंटैलीजेंस होंगी है, जिन्हें भी अपना कोई एकेडमिक का सारा मटीरियल या जो भी हर एक चीज़ होंगी, अपनी मैमरी, अपनी आई मूवमेंट, उस सारी कितने होंगी है एसोसीएट अपनी फ्रंटल लोब विच। ओके, हुण आ गया अपने को नैक्सट। द नैक्सट इज टैंपोरल लोब। टैंपोरल लोब मैं तुहानूं कित्थे कहा सीगा, बिल्कुल अपने ईयर दे उपर होएगी। सो टैंपोरल लोब दा की काम हुंदा है, इट इंटीग्रेट्स सोमैटिक, विजुअल एंड ऑडिटरी डाटा एंड कंटेन्स वर्निकी स्पीच एरिया। ये ब्रोका एरिया इत्थे लिखे, इत्थे ना 2 एरियाज लिखे हुए हैं। इतने ना एक ब्रोका एरिया लिखा, एक लिखा वर्निकी एरिया। ये मैं थोड़ा ना हुणे थोड़ी देर तक पढ़ानी कि की हुंदे आ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोका एरिया भी वेरी इंपॉर्टेंट ते वर्निकी एरिया भी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये मैं थोड़ा थोड़ी देर तक करानी है जो अपना ये सारा हो गया। देखो ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ अपना विजुअल, क्योंकि ये एक तो ईयर नाल कनैक्टेड है, तो ऑडिटरी तो डेफिनेटली होएगा ही। अपना ऑडिटरी डाटा सारा कितने होएगा, टैंपोरल लोब पे। ठीक है, अपनी अगर आप कुछ फील कर रहे हैं, सोमैटिक वाला सारा कितने होएगा, टैंपोरल लोब पे। दूसरा टैंपोरल लोब, क्योंकि ईयर है ना, ईयर के नाल ही तो अपनी आईज ने, तो जी अपनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी होएगी वो भी कितने होएगी, टैंपोरल लोब से। उस बाद आ गया अपने को पैराइटल लोब। जो पैराइटल लोब होएगा ना, उनके विच होएगा स्पैशियल इंफॉर्मेशन एंड कंटेन द सेंसरी कॉर्टेक्स। जो स्पैशियल इंफॉर्मेशन मतलब कि अगर आप जिमें कि अगर आप कोई काम करते हैं, आपां नूं हुंदा कि आपां वाला काम की करिए, चंगी तरह करिए। ठीक है, अगर अपनी पैराइटल लोब विच कोई प्रॉब्लम होएगी तो आप कोई भी काम अपना चंगी तरह नहीं कर सकते, क्योंकि जी छोटी छोटी डिटेल होंगी, आप कहते हैं कि हर एक काम की जी छोटी छोटी डिटेलिंग होंगी है, वो हर एक चीज़ कितने प्रेजेंट होंगी है, पैराइटल लोब विच। पैराइटल लोब विच स्पैशियल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होंगी है। स्पैशल इन्फॉर्मेशन का मतलब होंगे कि जी आप हर एक छोटी छोटी चीज़ करते हैं, वो हर एक चीज़ कितने प्रेजेंट होंगी है, अपनी पैराइटल लोब विच। उस तो बाद आ गया अपने कोले ऑसिपिटल लोब। हुण ऑसिपिटल लोब का की काम है, आपको पता है कि जी अपनी आईज होंदियां ने, ठीक है, वो आईज लास्ट विच आके अपने कोल केड़ी आंदी है, ऑप्टिक नर्व आंदी है। सो हुण जिहड़ी ऑप्टिक नर्व होंदी है वो कित्थे प्रेजेंट होंदी है, ऑसिपिटल लोब पे। ओके, सो प्रोसेसिंग ऑफ साइट टेक प्लेस इन ऑसिपिटल लोब। देखो आईज द लास्ट पोर्शन अपना केड़ा हुंदा है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही आप देखते हैं, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही आपको कलर की रिकॉग्निशन होंदी है कि ब्लू कलर है, ब्लैक है, ये ग्रीन है। ठीक है, अपनी विजुअली प्रॉपर विनर कितने होंदी है, आई ते ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही। तो जिन्ना भी अपना पूरा प्रोसैस है ना, साइट मतलब कि देखना, मैं थे
इंग्लिश लिख देनी है देखना। जिन्ना भी अपना साइट का प्रोसैस है ना सारा, वो कितने होंगे ऑसिपिटल लोब। सिर्फ ऑसिपिटल लोब का एक ही काम है कि जो भी आप देखते हैं ना वो सारा कितने देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑसिपिटल लोब। हुण इस तो बाद मैं तुहानूं लास्ट विच दस्सिया सीगा कि एक ब्रोका एरिया हुंदा ते एक वर्निकी एरिया हुंदा। मैं लिख देनी इत्थे ब्रोका एरिया, ठीक है, BA पाऊंगी। दूसरा मैं पा देनी इत्थे वर्निकी एरिया WA। हुण देखो की प्रॉब्लम है इन्हां विच। ब्रोका एरिया हुंदा अपना स्पीच नू एक्सप्रैस करना, ठीक है, ते वर्निकी एरिया हुंदा जिवें आपां कुछ सुनदे आ, ठीक है, जो आपां चंगी तरह हर एक चीज समझनी है। ओके, ब्रोका एरिया मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स। ओके, एंड वर्निकी एरिया मीन्स लिसन टू वर्ड्स। हुणे ना दो चीज़ां हुंदियां, देखो ब्रोका एरिया विच की लिखिया स्पीच, वर्निकी एरिया विच भी लिखिया स्पीच, ठीक है, बट वर्निकी एरिया अपना कित्थे हुंदा है टेंपोरल लोब विच। टेंपोरल लोब अपना कित्थे हुंदा है ईयर तो ऊपर, जो कि हेल्प करदे ऑडिटरी विच, है ना। वर्निकी एरिया अपना कित्थे हुंदा है टेंपोरल लोब दे विच। टेंपोरल लोब दा की काम हुंदा है कि उन्हें चंगी तरह अपना सुनन विच हेल्प करनी है। सो जो भी कोई कुछ बोलदा आपां नूं, है ना, वो आपां ध्यान नाल किवें सुनदे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्निकी एरिया। ओके, ये चीज़ मैं बोल रही हूँ ध्यान नाल सुनिए, क्यों, क्योंकि अगे जाके स्ट्रोक आपां पढ़ना, स्ट्रोक विच ब्रोका अफेजिया ते वर्निकी अफेजिया, मतलब कि या तो बंदे जो ब्रोका एरिया विच कोई प्रॉब्लम हुंदी है या वर्निकी एरिया विच प्रॉब्लम हुंदी है, या तो कुछ बोल नहीं पाता ते या कुछ सुन नहीं पाता प्रॉपर वे नाल, ठीक है। सो चीज़ां दोनों ध्यान नाल समझनियां ने। ब्रोका एरिया का मतलब हुंदा है कि स्पीच एक्सप्रैशन कंट्रोल, जिवें आपां अगर इहनूं कहीए ना तां की हुंदा है स्पीच एक्सप्रैशन। एक्सप्रैशन मतलब कि जिवें आप बोल रहे हैं कुछ, अगर आप कुछ एक्सप्रैसिव वे च बोल रहे हैं, अगर आप गुस्सा करना है ना, आप गुस्सा भी एक्सप्रैसिव वे च करांगे। अगर आप रो रहे हैं, रो के कुछ बोल रहे हैं, अगर आप खुशी कुछ बोल रहे हैं, जिवें मैं पढ़ा रही हाँ, तो सारे एक्सप्रैशनस अपने हर एक अपना वर्ड के जिहड़े वक्रे वक्रे एक्सप्रैशनस हुंदे आ, वो सारे ब्रोका एरिया कंट्रोल करदा है, ठीक है। अगर मैं गल करा वर्निकी एरिया दी, वर्निकी एरिया हुंदा लिसन, ठीक है। लिसन मतलब कि जेड़ी चीज आप चंगी तरह समझनी है, ठीक है। जिवें कि आप लिख दिए इत्थे, लिख दिए आप टू अंडरस्टैंड, ठीक है। वर्निकी एरिया का मतलब होंगे कि अगर आप कोई चीज सुन के समझनी है, टू अंडरस्टैंड। ओके, ब्रोका एरिया मतलब कि अगर आप कोई वर्ड कोई एक्सप्रेसिव वे कुछ एक्सप्रेस करना है, ओके, ते अगर मान लो कि अगर किसी को हेड इंजरी होगी या फ्रंटल लोब ते कोई प्रॉब्लम होगी या टेंपोरल लोब ते कोई प्रॉब्लम होगी या स्ट्रोक हो गया, तो उन्होंने या तो इधर ब्रोका एरिया इफेक्ट होएगा और वर्निकी एरिया होएगा। ब्रोका एरिया विच की इफेक्ट होएगा कि वो बोल नहीं पाऊगा, ठीक है। अगर वो बोल पाऊगा तो चंगी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाऊगा। वर्निकी एरिया विच की होगा कि वो सुन तो पाऊगा, उन्हें समझ तो लग, मतलब उन्हें सुन रहा होगा कि वर्ड्स बोले जा रहे हैं, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा होएगा। वर्निकी एरिया विच हो रहा है कि जिवें आपां कह दईए कि बंदा नूं सुनदा हुंदा है ना, अगर मान लो कोई पेशेंट है, ओके, लेट्स सपोज कि अपने कोल पेशेंट है, उनका वर्निकी एरिया खराब है, ठीक है। उन्होंने बोल रहे हैं कि सर डिड यू टेक योर मेडिसिन, कि तुसीं अपनी मेडिसिन लई आ, उन्होंने आप ये चीज़ बोल रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ तो सुन रही है कि उन्होंने वर्ड्स बोले जा रहे हैं, मेडिसिन डिड यू टेक या तुसीं अपनी मेडिसिन लई, उन्होंने ये चीज़ तो सुन रही है, बट उन्होंने ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि बोलिया की जा रहा है। ओके, एक हुंदा सुनना, एक हुंदा सुन के समझना। ओके, ते जिहड़ी चीज़ वो सुनदा है ना, जस्ट उन्होंने सुन रही है कि कोई कुछ आवाज़ आ रही है कितों, है ना, कोई वर्ड बोलिया जा रहा है, बट उन्होंने ये नहीं पता लगता कि वर्ड का मतलब की है, उन्होंने समझना किवें है। सो सारा कुछ किवें कौन कंट्रोल करता है, वर्निकी एरिया। तो अगर आप ब्रोका एरिया के बारे गल करिए, तो अगर आप कोई वर्ड्स बोलने होंगे, ठीक है, अगर आप कोई गुस्से में कोई वर्ड्स बोलने हैं, तो आपको पता तो पेशेंट में तो पता होगा कि वर्ड है, बट उन्होंने ये नहीं समझ आऊगी कि वर्ड किवें एक्सप्रैस करने हैं। ओके, सो एक्सप्रैशन दा प्रॉपर वे नाल सारा हो गया ब्रोका एरिया विच, ते वर्निकी एरिया विच हो गया अंडरस्टैंड करन दा। हुण आ गया अपने को लिम्बिक सिस्टम। ओके,
ਸੋ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿੰਬਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਜੋ ਲਿੰਬਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੇਟਡ ਨੀਅਰ ਦ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਸੈਰੀਬਰਲ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਐਗਰੈਸ਼ਨ, ਫੀਡਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਸੋ ਲਿੰਬਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਲਿੰਬਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਵਲੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਯੋਰ ਲਿੰਬਿਕ ਏਰੀਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿੰਬਿਕ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊਰੋ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ, ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲਿਨ, ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਰੀਲਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਸੋ ਜੋ ਲਿੰਬਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਵਿੰਗ ਨੇਚਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਲਿੰਬਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੈਰੀਬਰਮ, ਟੈਂਪੋਰਲ, ਫਰੰਟਲ, ਪਰਾਈਟਲ ਜਾਂ ਲਿੰਬਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੱਲਾ ਲਿੰਬਿਕ ਏਰੀਆ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਕਿ ਫਰੰਟਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਟੈਂਪੋਰਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰਾਈਟਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਸੀਪਿਟਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਲਿੰਬਿਕ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਲਿੰਬਿਕ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, अपना अग्रेशन, अपना फीडिंग बिहेवियर, अपने सेक्शुअल पैटर्न्स, अपने सेक्शुअल डिजायर्स, हर एक चीज कौन कंट्रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम। नाउ द अदर थिंग इज ब्रेन स्टेम। सो ब्रेन स्टेम की होंदा है, जो ब्रेन स्टेम होंदी है ना, द ब्रेन स्टेम इंक्लूड द मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूबुलर, रेस्पिरेटरी, वेजोमोटर, कार्डिक फंक्शंस एंड आर लोकेटेड इन द मेडुला। हुण आप एक चीज पढ़ी सी पहला सेरिब्रम, ठीक है, सैरीब्रम तो बाद आप पढ़िया लिंबिक सिस्टम। हुण आप पढ़ांगे ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम हुंदा ना, उनके अंदर किहड़े-किहड़े बॉडी ब्रेन दे पार्ट्स हुंदे आ, किहड़े-किहड़े ब्रेन दे पार्ट्स हुंदे, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला रेस्पिरेटरी। मेडुला ऑब्लिगेंटा हुंदा ना, मेडुलरी ऑब्लिगेंटा, मेडुला ऑब्लिगेंटा, मेडुला ऑब्लिग, यार की है कैमरा ही नहीं आता, ऑब्लिगेंटा इत्थे पा देनी है। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੈਡੂਲਾ ऑब्लिगेंटा ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੂਲਾ ऑब्लिगेंटा ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਡੂਲਾ ऑब्लिगेंटा ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੈਡੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ, ਵੇਜ਼ੋਮੋਟਰ ਐਂਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਰੀਬਲਮ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਰੀਬੈਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੋਲੰਟਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨ ਟਰੰਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰ ਪਾਰਟ थिक ਹੁੰਦਾ, ठीक है, अपर बॉडी फैटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਗਸ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫ੍ਰੇਜਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਥਿਕ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਨੀਚੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਪਤਲੇ, ਨੀਚੋਂ ਵੀ ਪਤਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰੀਬੈਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਕ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, हाँ, अपने स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट वाला पोर्शन होंदा है। ओके, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਕਰਮ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ, ਸੈਰੀਬੈਲਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੋਲੰਟਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਵੋਲੰਟਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਸੈਰੀਬੈਲਮ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੋਲੰਟਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੈਰੀਫਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਸ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਵੋਲੰਟਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਰੀਬੈਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟਰੰਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੋਸਚਰ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੌਣ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ, ਸੈਰੀਬੈਲਮ।
अगर सेरिबेलम इफेक्ट होगा तो अपनी बॉडी सीधी नहीं खड़ी होगी, अपनी बॉडी का पोस्चर सही नहीं होएगा, ठीक है, अपना बैलेंस नहीं सही होएगा, अपना बॉडी टेंपरेचर नहीं सही होएगा, अपनी आप खुद अपनी मर्जी नाल कोई मूवमेंट्स नहीं कर सकते। ओके, उस तो बाद आ गया अपने कोले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पीएनएस कितने हैं? ओके, सॉरी, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हुंदा है। ओके, एरिया ऑटोनॉमिक एरिया अपने को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हुंदा है ना, वो की हुंदा है, वो दो पार्ट्स विच डिवाइडेड हुंदा है, ठीक है। किहड़े-किहड़े दो पार्ट विच, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ते एक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिहदे बारे में थानू जीआई विच भी नॉलेज दित्ती सीगी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हुंदा ते पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हुंदा है। हुण आपां फेर पढ़ लैंदे आ क्योंकि जीआई सीगा ते आपां न्यूरोलॉजी कर रहे हैं। सो जिहड़ा सीएनएस एसएनएस हुंदा ना, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, everything increase. SNS is also known as fight and flight, ठीक है। ਇਨਕਰੀਜ਼ मतलब कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬੀਪੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਰੇਟ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪਲਸ, पेशेंट दा बॉडी टेंपरेचर, हर एक चीज़ की होएगी इंक्रीज होएगी। ओके, मान लो कि अगर किते अग लग गई, ठीक है, बहुत ही उत्थे क्राउड हो गया, ठीक है, लोग भज रहे हैं, तो अगर मान लो आप उस सिचुएशन च हुन्ने तो आप भी भजते हैं, तो वो जिहड़ा रिस्पॉन्स हुंदा वो किवें आंदा, विद द हेल्प ऑफ एसएनएस। एसएनएस मतलब कि फ्लाइट एंड फाइट, मतलब कि जदों आपां नूं किते भजना हुंदा, ठीक है, या अगर आप किसी नाल लड़ते हैं तो जिहड़ा अपना रिस्पॉन्स हुंदा बॉडी का, वो की हुंदा एसएनएस तो आंदा है, मतलब कि अपनी बॉडी टेंपरेचर इंक्रीज हो जाता है, वाइटल साइंस इंक्रीज हो जाते हैं सारे, ठीक है, एक्सैप्ट बॉवल मूवमेंट्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ होएगी कॉन्स्टिपेशन, अपनी बॉवल मूवमेंट्स की हो जांदियां ने, डिक्रीज हो जांदियां ने, ठीक है। ते जेड़ा हैगा अपने कोले पीएनएस, ये हैगा काम, पीस, मतलब कि ये की कर दिंदा, हर एक चीज़ डिक्रीज कर दिंदा है। डिक्रीज किवें किवें करूगा, जिवें कि पल्स डिक्रीज, रेस्पिरेटरी डिक्रीज, बीपी डिक्रीज, बॉडी टेंपरेचर डिक्रीज, एक्सेप्ट ये की करता है डायरिया। डायरिया का स्पैलिंग देख लिया जे, ठीक है, ये चीज़ पता लग गई। एसएनएस करता है मतलब कि आप कह दिए वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। पीएनएस करता है वेजो डायलेशन, ठीक है, तो जो डायलेशन होएगी तो उदों ब्लड प्रॉपर वे नाल जा रहा होगा, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं विच आऊगी, हर एक चीज़ काम होगी, पेशेंट का बीपी वगैरह सब कुछ लो होएगा। ओके, तो जो एसएनएस होएगा उदों की होएगा, तो फ्लाइट एंड फाइट वाला रिस्पॉन्स आएगा, कोई भज भजाई वाला काम करना, कोई फटाफट वाला काम करना होएगा, जिवें कि आप सवेरे जो आप ऑफिस लिए लेट हो जाते हैं, या जो किसी का एग्जाम हुंदा बच्चा स्ट्रैस विच हो जाता है, तो स्ट्रैस विच ओहदे की हो जांदियां ने, उनका बीपी वगैरह टेंपरेचर ओहदा की हो जाता है, कईयां नूं तां बुखार हो जाता है ना। तो बुखार क्यों हुंदा है, पेपर आने तो पहले बच्चे नूं बुखार क्यों हो जाता है, क्योंकि एसएनएस सिस्टम एक्टिवेट होया हुंदा है, ठीक है। तो एसएनएस सिस्टम के एक्टिवेट होने करके की हो जाता है कि पेशेंट का बीपी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो यह रिस्पॉन्स होंगे, ये दोनों चीज़ां याद रखनी है, क्योंकि अगे जाके आप साइकैट्री पढ़नी हैगी है, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि एसएनएस की करता है, हर एक चीज़ इंक्रीज कर दिंदा है, ठीक है। जिवें कि पेपर तो आने तो पहले जो बच्चे की सिचुएशन होंगी है, या अगर रस्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या किते अग लग जाती है, या अपने घरे कोई चोर आ जाता है, या अपने कोई सट लग जाती है, बट पीएनएस हुंदा है जो आप मेडिटेशन करके हटते हैं,
ठीक है। ये जो आप अपनी खुशी का काम करके हटते हैं, आप बहुत काम होंगे, आप बहुत पीसफुल होंगे, तो हर एक वाइटल साइंस डिक्रीज हो जाता है एक्सैप्ट कि पेशेंट नू डायरिया हो जाता है। ये सारा कुछ ਉਹੀ ਸੀਗਾ जो लिखा है ना थे। एसएनएस की करूँगा, फ्लाइट एंड फाइट का रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। उस तो बाद आ गया अपने को सर्कल ऑफ विलाइस। देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਜ਼ੈਂਟਰਿਕ ਆਰਟਰੀ, ਹਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਆਫ ਵਿਲਾਈਸ। ਸਰਕਲ ਆਫ ਵਿਲਾਈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है। एक सर्कल जिहा हुंदा ते दे अंदरों निकल रही हुंदियां ने सारियां दी सारियां ब्लड वैसल्स जो जा रही हुंदियां ने ब्रेन विच। ये सारियां ब्रेन दे अलग अलग पोर्शनस नू डिवाइड होणगियां, काइंड ऑफ दिस सिचुएशन हुंदी है, ठीक है। सर्कल ऑफ विलाई मतलब कि एक वड्डे जे सर्कल चो काफ़ी सारियां की निकल रही होंगी, ब्लड वैसल्स निकल रही होंगी, ठीक है, जो कि कर रही होंगी ब्रेन नू ब्लड सप्लाई कर रही होंगी। तो किसी भी अगर ब्लड वैसल विच प्रॉब्लम आ गई या आर्टरी विच की हो गया कोई सॉरी ब्लॉकेज हो गई या एम्बोलाई हो गया, तो पेशेंट नू काहदा रिस्क हो सकता है, स्ट्रोक दा, ठीक है। तो की होगा, या तो प्रॉपर बिना ब्लड सप्लाई नहीं जाऊगी, मान लो कि सैरीबैलम है या सैरीब्रम है या लिम्बिक सिस्टम है, सबकी वक्री वक्री की हैगी है ब्लड वैसल है, ओके। तो अगर किसी भी ब्लड वैसल ते प्रॉपर वे नाल ब्लड सप्लाई नहीं हुई, उत्थे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, या तो प्रॉपर वे नाल एरिया अपना काम नहीं करूगा, तो या पेशेंट नू की हो जाऊगा, स्ट्रोक हो जाऊगा, ओके। यही है सर्कल ऑफ विलाइस। सर्कल ऑफ विलाई की है is a formed by communicating arteries that join the basilar and internal carotid artery। ਹੁਣ देखो सारी सर्कल ऑफ विलाइज एक वड्डी सारी ਉਹਦੇ ਨਾਲ आर्टरी ਨਾਲ जुड़ी हुई है, जिवें ਇਹ सारी communicate हो के ना सारी आर्टरीज, ये सारी आर्टरीज communicate हो के एक वड्डी सारी आर्टरी बनती है जो कि हुंदी है कैरोटिड, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी बनती है, ठीक है। बट ये सारिया वखरे वखरे बॉडी नहीं सॉरी, ये सारिया वखरे वखरे ब्रेन नाल वखरे वखरे ब्रेन दे पार्ट्स नाल कनेक्टेड हुंदियां ने, ठीक है। सर्कल ऑफ विलाइस की हैगी कम्युनिकेटिंग आर्टरीज दैट जॉइन द बेसिलर एंड इंटरनल artery। The blood brain barrier is a physiological barrier between blood capillaries and brain tissues। This barrier protects the brain from harmful agents while allowing nutrition and gases to enter। what is the blood brain barrier? देखो blood brain barrier ਦੀ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਿਪੈਟਿਕ ਇਨਸੈਫਲੋਪੈਥੀ। ਹਿਪੈਟਿਕ ਇਨਸੈਫਲੋਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ओके, कि लीवर उन्हें डिटॉक्सीफाई नहीं कर पाता अमोनीया नूं, ते बॉडी विच अमोनीया का लैवल इनक्रीज हो जाता है। तो अमोनीया की करता है फिर ब्लड ब्रेन बैरियर नूं क्रॉस करके की कर दिंदा पेशेंट नूं हिपैटिक इनसैफलोपैथी। सो ब्लड ब्रेन बैरियर की हुंदा है कि अगर अपनी बॉडी विच अगर अपनी ब्लड सर्कुलेशन विच कोई इहो जिहा टॉक्सिन सबसटेंस हैगा जो कि हैगा बहुत खतरनाक आपां कह दईए अपनी बॉडी लई, बट वो ब्रेन विच ना जावे तो अपने ब्रेन ने की बनाया होया एक बैरियर, मतलब की हैगा आपां कह दईए रुकावट है, ब्लड की हर एक चीज़ ब्रेन ते ना जावे तो ब्रेन ने अपने अगे आपां कह दईए एक दरवाज़ा लगाया हुआ, एक रुकावट पैदा की हुई है जिन्हों आपां कहने ब्लड ब्रेन बैरियर। हुण कुछ चीज़ां उस ब्लड ब्रेन बैरियर नूं की कर जांदियां ने क्रॉस, ते कुछ नहीं करदियां, जिवें कि हिपैटिक इनसैफलोपैथी के केस विच अमोनीया ब्लड ब्रेन बैरियर नूं क्रॉस कर जांदा है। बट अगर मैं गल करां पार्किंसन दी, ठीक है, तो उहदे विच आपां एक मैडिसिन दिंदे आ लिवोडोपा। लिवोडोपा की हुंदी है, डोपामीन का प्रिकर्सर है, मतलब कि आपां पार्किंसन वाले पेशेंट नूं ना उन्हां दी सिचुएशन नूं सही करने वास्ते आपां बाहरों एक मैडिसिन दिंदे आ लिवोडोपा। और लिवोडोपा नूं ना हमेशा आपां कार्बिडोपा नाल दिंदे आ, क्यों? क्योंकि लिवोडोपा कल्ली ना कभी भी ब्लड ब्रेन बैरियर नूं क्रॉस नहीं कर पाती, ओके। या आपां मैनिंजाइटिस विच वैंकोमाइसिन दिंदे आ, ठीक है, आईसीपी विच आपां वैंकोमाइसिन एंटीबायोटिक्स दिंदे आ, तो सारी एंटीबायोटिक्स ना ब्लड ब्रेन बैरियर नूं क्रॉस नहीं कर सकदियां, सिर्फ कुछ ही आपां कह दईए कि मैडिसिन ब्लड ब्रेन बैरियर नूं क्रॉस कर जांदियां ने, जिवें कि जेंटामाइसिन। अगर जेंटामाइसिन ब्लड ब्रेन बैरियर नूं क्रॉस कर गई ना तो पेशेंट नूं की हो जाता है, पेशेंट नूं मायस्थीनिया ग्रेविस हो जाता है,
ਓਕੇ। ਸੋ ਬਲੱਡ ਬ੍ਰੇਨ ਬੈਰੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੌਕਸਿਨਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੀਵੋਡੋਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਵੋਡੋਪਾ ਕੱਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬਲੱਡ ਬ੍ਰੇਨ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬੀਡੋਪਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮੋਨੀਆ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਬਲੱਡ ਬ੍ਰੇਨ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ, ਜੈਂਟਾਮਾਈਸਿਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਓਮਾਈਸਿਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਬਲੱਡ ਬ੍ਰੇਨ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਲੱਡ ਬ੍ਰੇਨ ਬੈਰੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ, ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਏਜੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮੈਨਿੰਜਸ। ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਨਿੰਜਸ मतलब कि ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨਿੰਜਸ मतलब कि ਮੈਂਬਰੇਨਸ। ਮੈਨਿੰਜਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨਿੰਜਾਈਟਸ मतलब कि ਮੈਨਿੰਜਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ टू ब्रेन मैम्ब्रेन्स, ठीक है। मैनिंजाइटिस की हुंदा है कि ब्रेन दिया जो मैनिंजिस ने, जिहड़ियां ब्रेन दिया मैम्ब्रेन्स ने, उन्हां दी इन्फेक्शन होगी। सो मैनिंजिस की हुंदियां ने अपनी ब्रेन दिया 3 प्रोटेक्टिव की हुंदियां ने मैम्ब्रेन्स हुंदियां ने, ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड स्पेस एंड पिया मैटर। मतलब कि आपां जिवें गल करिए, इत्थे बना दिंदी आं मैं, देखो की पढ़िया आप पिछे, ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड स्पेस ते पिया मैटर, है ना। ब्रेन दी 3 लेयर्स हुंदियां ने, एक तो बाहर वाली लेयर होगी, ठीक है, एक अंदर वाली लेयर होगी, इनू एवें बना देनी है, ओहो हाँ। ते विच की होगी आर्केनॉइड स्पेस। आर्केनॉइड स्पेस इन्नी नहीं हुंदी जिन्नी मैं बना रही हाँ। जिहड़ी आह पर्पल वाली लेयर होगी ड्यूरा मैटर, ठीक है। जिहड़ी आ वाली होगी ऑरेंज वाली, एक ही होगी अपनी पिया मैटर। ते सेंटर पोर्शन की हो गया अपना आर्केनॉइड स्पेस, ठीक है। ते तीनों ए बन गया, तीनों मिला के की बन गया, अपनी 3 लेयर्स बन गया। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋ ਪਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ, ਸੈਰੀਬਰਮ, ਸੈਰੀਬੈਲਮ, ਲਿੰਬਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ 3 ਲੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਅਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੰਟਲ ਲੋਬ ਦੇ, ਪੈਰਾਈਟਲ ਲੋਬ ਦੇ, ਟੈਂਪੋਰਲ ਲੋਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ सुनने है तुसी, मतलब समझने है तुसी जिन्ने भी फंक्शंस है, ठीक है। ते नाल की करना है, वीडियो नु लाइक, शेयर एंड कमेंट। कमेंट पॉजिटिव, कमेंट नेगेटिव, कोई भी करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ नहीं समझ आया तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही करोगे ना, बट करो, क्योंकि मैंने पता लगूगा कि मैंने किहड़ी है ना चीज़ विच अमेंडमेंट्स करने की लोड़ है वाइल टीचिंग। सो हुण आपां मैनिंजिस पढ़ लिया ने कि की हुंदियां ने, ओके। हुण आपां अगे पढ़ना है यार, हाँ, हुण आपां पढ़ना है असैसमेंट। असैसमेंट विच आपां देखना पेशेंट दा, जदों भी अपने कोल कोई ब्रेन दा पेशेंट आंदा ना, सब तो सौखी असैसमेंट हुंदी है कि करना आपां, एक तो उन्हां दी अपीयरेंस देखनी है, ठीक है। अगर अपने कोल ना कोई पेशेंट आंदा जिन्हों आपां नूं लगदा कि उन्होंने कोई ब्रेन इंजरी आई है, कैसी उनदी ब्रेन विच कोई प्रॉब्लम है, तां आपां उनदी अपीयरेंस देखनी है, ठीक है। क्योंकि आपां ये चीज़ देखते हैं कि पेशेंट जिहड़ा सब तो ज़्यादा एनक्लेक्स विच या नॉर्सड विच क्वेश्चन आंदा है कि डस द पेशेंट इज ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द वेदर। क्योंकि अगर पेशेंट मान लो अज हुण जिवें हुण काहदा मौसम है, सर्दी है, बट गर्मी प्रॉपर वे नाल गई नहीं, तो मान लो कि कोई इत्थे रह के, पंजाब विच रह के किसी ने मोटिया जैकेट्स पाई हुई है नवंबर के टाइम पे, मतलब कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। आप ये चीज़ देखनी है कि
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਸਨ ਨੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਡਰੈਸਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ, ਪਲੇਸ ਤੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਲੰਬਰ ਪੰਚਰ। ਲੰਬਰ ਪੰਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੰਬਰ ਪੰਚਰ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਮੈਥਡ ਆਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ CSF। ਲੰਬਰ ਪੰਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ CSF ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨਿੰਜਾਈਟਿਸ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ICP ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, CSF ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਬਰ ਪੰਚਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਲੰਬਰ ਪੰਚਰ ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ICP ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। is contraindicated in the presence of increased ICP or infection at the site of puncture। या जिथे पंचर होया होवे, मान लो पेशेंट ਨੂੰ ਕਈ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਲੰਬਰ ਪੰਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਲੰਬਰ ਪੰਚਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਲੰਬਰ ਪੰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲੰਬਰ ਪੰਚਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ICP ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ CSF ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫੇਨੋਇਡਲ ਹਾਈਪੋਫੈਜੈਕਟਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਈਪੋਪਿਟਿਊਟਰਿਜ਼ਮ, ਸੌਰੀ ਹਾਈਪਰਪਿਟਿਊਟਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ CSF ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਾਊਂਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਵ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੋਇਡ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਲੰਬਰ ਪੰਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੀਨੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਇਨਸੈਫਲੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਇਨਸੈਫਲੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ? ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਦ ਸਰਫੇਸ ਕੋਰਟੀਕਲ ਨਿਊਰੋਨਸ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਪਲੇਸਿੰਗ ਔਨ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਸਕੈਲਪ। ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਅਸੈਸਡ ਬਾਈ EEG ਆਰ ਸੀਜ਼ਰਸ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਸਲੀਪ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਸੈਰੀਬਰੋਵਾਸਕੂਲਰ ਲੀਜਨਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਜਰੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਇਨਸੈਫਲੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਨ ਯੋਰ ਸਕੈਲਪ, ਔਨ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਕੈਲਪ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸਨਾ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਲੀਪ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਜਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਜਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ EEG ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ EEG ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? EEG ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੋ ਸਕੈਲਪ should be clean, okay, avoid any medications। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਆਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਓਕੇ, so electromyography ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Electromyography and the nerve conduction studies EMG is the recording of electric activity associated with the intervention of skeletal muscles. Needle electrodes are inserted into the muscle to record the specific motor unit because recording from the skin is not sufficient. Normal muscles at rest show no electric activity। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ EEG ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੈਸਟਿੰਗ ਫੇਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ EEG। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ EEG ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ EMG। EMG ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਪਲੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਕੈਲਪ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਟ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੀਡਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਪਲੇਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ? EMG ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕੈਲਪ ਵਗੈਰਾ, ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਪ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਅਗਰ ਰੈਸਟਿੰਗ ਫੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ EMG ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬ੍ਰੇਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਸਲਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਸ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, हाँ जो अपने कोले पहला न्यूरोट्रांसमीटर है वो की हैगा अपने कोले एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਪੀਨੈਫ੍ਰਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋਰਐਪੀਨੈਫ੍ਰਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਰੋਪੈਪਟਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੀਰੋਟੋਨਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਪਾਮਾइन ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਤੇ ਮਾਇਸਥੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਸਥੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮਾਇਸਥੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ decrease in acetylcholine neuron is seen in Alzheimer disease and myasthenia gravis result from reduction in acetylcholine receptors, ठीक है। अगर अपनी बॉडी विच acetylcholine नहीं होगा ना तो अपनी बॉडी की होगी ड्राई बॉडी, ठीक है। ड्राई बॉडी मीन्स कि कोई भी secretions नहीं प्रेजेंट होंगी, ठीक है, कोई लुब्रिकेशन ही नहीं होएगी किते भी किसी भी बॉडी पार्ट पे, कोई स्वेटिंग नहीं होएगी, ठीक है, कोई टीयर्स नहीं आएंगे, जीआई सिस्टम में भी कोई लुब्रिकेशन नहीं होएगी, स्टूल पास करने में पेशेंट को प्रॉब्लम होएगी, वजाइनल ड्राइनेस होएगी, ठीक है, जो मेल्स विच स्पर्म काउंट लो हो जाएगा क्योंकि कोई secretions ही नहीं निकलनगियां, ओके। सो एसिटाइलकोलिन की हो जाएंगे, अगर एसिटाइलकोलिन डिक्रीज हो जाए तब बॉडी की हो जाएगी ड्राई हो जाएगी, ठीक है। तिना किना केस विच हुंदा माइस्थेनिया ग्रेविस विच। फिर आगे अपने कोले एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन। देखो ਆਪਾਂ एसएनएस पढ़ के आए ਸੀਗੇ, एसएनएस ਤੇ पीएनएस। वो जो एसएनएस ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ एंडो विच पढ़े ਸੀਗਾ दो चीज़ां, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला, ठीक है। ਤੇ ਜਦੋਂ एड्रीनल कॉर्टेक्स की सीगा करदा सिक्रीट अपने कोले कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ਆਪਾਂ पढ़ लिया। एड्रीनल मेडुला की करदा है एपीनेफ्रिन ते नॉरएपिनेफ्रिन। ते एपीनेफ्रिन ते नॉरएपिनेफ्रिन किवें एक्टिवेट हुंदे आ बाय द एसएनएस, ठीक है। जो अपना फ्लाइट एंड फाइट का कोई रिस्पॉन्स होंदा है एसएनएस एक्टिवेट होंदा है ते एसएनएस एड्रीनल मेडुला विचों किहड़े दो न्यूरोट्रांसमीटर नूं सक्रीट करदा ब्रेन विच, एपीनेफ्रिन ते नॉरएपिनेफ्रिन बॉडी विचों, ठीक है। एपीनेफ्रिन ते नॉरएपिनेफ्रिन जो पेशेंट नूं कार्डियक अरेस्ट हुंदा है ना, उनकी जो आपां कहदे पल्स रेट स्टॉप हो जाती, रेस्पिरेटरी रेट स्टॉप हो जाता है, तो आप पेशेंट को बाहरों एपीनेफ्रिन ते नॉरएपी देने हैं, क्यों, क्योंकि उनकी इंक्रीज हो जाए हार्ट रेट। सो जो भी एसएनएस सिस्टम एक्टिवेट होएगा बॉडी विच उदों किहड़े दो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, एपीनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। एपीनेफ्रिन के इज बोथ हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर, ये हार्मोन भी है ते न्यूरोट्रांसमीटर भी है, प्रोड्यूस इन द न्यूरोन ऑफ सीएनएस and of and neurosecretory cells of adrenal medulla। ਇਹ CNS ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ adrenal medulla ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ SNS ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਫਲਾਈਟ ਐਂਡ ਫਾਈਟ ਰਿਸਪੌਂਸ एड्रीनल एपीनेफ्रिन जो हुंदा है वो दो जगह तो प्रोड्यूस हुंदा है, सीएनएस भी करता है सिनेप्टिक लेफ्ट ते एड्रीनल मेडुला भी करता है, ओके। एक हार्मोन भी है ते एक न्यूरोट्रांसमीटर भी हैगा, ओके। ते एक कदों एक्टिवेट हुंदा है फ्लाइट एंड फ्राइट विच, मतलब कि जदों एसएनएस अपने एक्टिवेट होया हुंदा। दूसरा आ गया अपने को नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी की हैगा उनदे वांगू ही हार्मोन भी है ते न्यूरोट्रांसमीटर भी हैगा, ठीक है। It has an important role as a neurotransmitter releasing from SNS affecting the heart। but ਜਿਹੜਾ नॉरएपिनेफ्रिन है ना वो ज़्यादातर किहदे नाल किहड़े ऑर्गन नाल ज़्यादा एसोसीएट हैगा हार्ट दे नाल, ठीक है। along with epinephrine has important role in flight and fight response increasing heart rate। बस वही कुछ लिखा हुआ है कि अगर एपिनेफ्रिन ते दोनों एपीनेफ्रिन ते नॉरएपिनेफ्रिन दोनों इंक्रीज हो गए बॉडी विच तो की होगा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फ्लाइट ते फाइट वाला रिस्पॉन्स की होगा एक्टिवेट हो जाएगा, फ्लाइट एंड फाइट वाला रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ ग्लूकोज बॉडी विच की हो जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, ब्लड फ्लो की हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। एपीनेफ्रिन ते नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स भी हैगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैगे है, ठीक है। बट मेनली जो नॉरएपी हैगा वो हार्ट दे लई काम करदा अपना, ठीक है। ये दोनों सीएनएस तो भी रिलीज होंदे ते एड्रीनल मेडुला विच भी रिलीज होंदे हैं। बट कदों रिलीज होंदे जो अपना एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की होंदा एक्टिवेट होंदा है, ये की कर दिंदे आ हर एक चीज़ नूं इनक्रीज कर दिंदे आ, टैंपरेचर नूं, ब्लड फ्लो नूं, ग्लूकोज नूं, पल्स रेट नूं, बीपी नूं, ते की करदे आ। बट जीआई विच की करदे आ ये कॉन्स्टिपेशन। उस बाद आ गया अपना सेरोटोनिन। सो आजकल फोन तो सबको लिया है ना,
ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ, ਰੀल्स ਵੀ ਸਭ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈਕਸ ਆਏ ਆ, ਹਾਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਯਰ ਸੀਰੋਟੋਨਿਨ, ਹਾਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਯਰ ਡੋਪਾਮਾइन, ओके, हाउ टू इंक्रीज योर अमीन्स इन द बॉडी। अगर सीरोटोनिन इंक्रीज करना है तो हग योर लव्ड वंस, रीड योर बुक्स एंड मेडिटेट, गो फॉर जिमिंग, प्ले विद योर पेट। ये सारी चीज़ां की करेंगे सीरोटोनिन ते डोपामिन इंक्रीज कर देंगे। ऑल दो ये सारी चीज़ां सीरोटोनिन ते डोपामिन इंक्रीज करनगियां, ओके, बट ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਫ ਯੂ ਪਲੇ ਵਿਦ योर पेट फॉर 1 to 2 days, ठीक है, उस टाइम तक होंगे, बट अगर तुम नहीं खेलोगे फिर नहीं होंगे। मतलब कि जो जो एक्टिविटीज़ आप रील्स से देख रहे हैं ना, कि बुक पढ़ो, जिमिंग करो, पैट नाल खेलो, अपने लव्ड वन को हग करो, कुकिंग करो अपने लिए, थोड़ी हार्मोन्स रिलीज करेंगे, बट ये फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम करेंगे। जो तुम ये चीज़ां करनी छड़ दोगे थोड़े हार्मोन्स बैक टू द उसी स्टेट पर आ जाएंगे प्रीवियस वाली। सो की हुंदा सीरोटोनिन, की हुंदा इट हेल्प्स। सीरोटोनिन करदा की है, मूड, इमोशंस एंड स्लीप, ठीक है। इसी करके अपन रील्स से देखते हैं कि पैट ना खेलने नाल आपां वधिया हो जाने, या एथलीट्स जिहड़े हुंदे आ वधिया सोंदे आ। क्यों? क्योंकि उन्हां दी बॉडी विच सीरोटोनिन ज़्यादा हुंदा है, ठीक है। ये हुंदा है जीआई ट्रैक्ट विच, प्लेटलेट्स विच ते सीएनएस विच, ठीक है। हेल्प की करदा आपां नूं खुश रखण विच, अपने इमोशन एक्सप्रैस करन विच ते वधिया नींद विच। जो डोपामिन हुंदा वो की हुंदा अपने बहुत ही सारे सैवरल एरिया जिहड़े हुंदे ब्रेन दे उत्थों रिलीज हुंदा, ठीक है। ਜਦੋਂ ਡੋਪਾਮਾइन डिक्रीज ਹੋਵੇ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੋਪਾਮਾइन डिक्रीज ਹੋਣ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, डिक्रीज डोपा एंड इंक्रीज ACTH। मतलब कि बॉडी विच जो डोपामिन डिक्रीज होएगा तो एसिटाइलकोलिन की होगा वध जूगा। माइस्थेनिया ग्रेविस विच एसिटाइलकोलिन की हुंदा डिक्रीज हुंदा है, तो जो एसिटाइलकोलिन डिक्रीज होगा तो बॉडी विच की होगा डोपामिन वध जूगा। ते पार्किंसन विच की हुंदा है, डोपामिन की हुंदा डिक्रीज हुंदा तो ACTH की हो जूगा डिक्रीज हो जूगा, ठीक है। ये सिचुएशन कदों होएगी? इन केस ऑफ पार्किंसन, ठीक है। अपने को ए सिचुएशन कदों आएगी? इन केस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस विच ACTH डिक्रीज हुंदा तो डोपामिन इंक्रीज हो जाता है। पार्किंसन विच अपने को डोपामिन डिक्रीज हुंदा तो ACTH की हो जाता है, वध जाता है, ठीक है। तो डोपामिन की हुंदा है, पार्किंसन विच डिक्रीज हुंदा है, ठीक है। ये भी आपां नूं मूड स्टेबल करने विच हेल्प करता है। दूसरा आ गया अपने को अमाइनो एसिड्स। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ। ਅਮਾਈਨੋ ਬਿਊਟਾਇਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੀਫ ਇਨਹਿਬਿਟਰੀ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰ ਇਨ CNS, has a role in regulator neuronal excitability throughout the nervous system. Drugs that increase the GABA functions have been used to treat seizure disorder. ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਿਊਰੋਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਕਸਾਈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਪਲਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਇੰਪਲਸ ਜਨਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ GABA प्रोटीन, ठीक है। गाबा अमीन, सॉरी, गाबा अमीन की करूगी अपनी बॉडी में जी इंपल्स होएगी उन्होंने जनरेट कराने का एक तरीके का की है, तेल है, एक तरीके का पेट्रोल है। कौन? न्यूरोट्रांसमिटर्स, केड़ा? अमीन, केड़ा? गाबा। अगर आप कोई इंपल्स जनरेट करवानी है तो की लोड़ आपां नूं गाबा की जरूरत हैगी है, ठीक है। फिर आ गया अपने को ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट। ग्लूटामेट ते एस्पार्टेट की करते हैं आपां नूं लर्निंग ते मैमरी विच हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ याद करते हैं, अगर आप कुछ बोल रहे हैं, अगर मैं पढ़ती पई, अगर कुछ मैं समझना है तो हर एक चीज़ की होगी अपने को एस्पार्टेट ते ग्लूटामेट हेल्प करेंगे, ठीक है। इन्हां दोनों चीज़ां एस्पार्टेट ते ग्लूटामेट ALS आपां पढ़ना अगे जाके उहदे विच घट हुंदियां ने। इसी करके जो ALS वाला पेशेंट हुंदा ना, वो ना समझ पांदा है ते ना ही बोल पांदा है, क्योंकि उहदे विच ग्लूटामेट ते एस्पार्टेट ही नहीं हुंदा। देखो, मान लो कि अपने को फ्रंटल लोब विच भी कोई कमी नहीं हैगी, पैराइटल विच भी नहीं हैगी, टेंपोरल लोब विच भी नहीं हैगी, लिम्बिक सिस्टम भी सही है, ठीक है। हर एक लोब सही है, हर एक बॉडी का ब्रेन का पार्ट सही है, बट अगर पेशेंट के बॉडी विच, पेशेंट के सॉरी ब्रेन विच न्यूरोट्रांसमिटर्स की कमी हैगी है तो ओह वाले जो ब्रेन के पार्ट्स ने ऑल्दो काम करनगे बट वधिया तरीके नाल काम नहीं कर सकते, ठीक है। न्यूरोट्रांसमिटर्स की हैगा ऑयल एक तरीके का ब्रेन के पार्ट्स नूं काम करवाने वास्ते, ठीक है। अगर फ्रंटल लोब ने मैमरी रिटेन करनी है ना तो मैमरी रिटेन करूगा, बट अगर बॉडी विच ग्लूटामेट ते एस्पार्टेट नहीं होगा ना तो मैमरी वधिया तरीके नाल नहीं रिटेन होनी,
ठीक है। अगर आप कहते पराइटल अपन छोटी छोटी चीज़ा या मूड में हेल्प कर देना, तो अगर अपनी बॉडी में सेरोटोनिन या डोपामिन नहीं होगा, अपना मूड स्टेबल नहीं हो सकता, तो कला ब्रेन का पार्ट नहीं कुछ कर सकता, उन्होंने वर्क करवाने वास्ते न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत हैगी है। फिर आगे अपने को एंडोरफिन्स। एंडोरफिन्स की होंगे है, ये भी की होंगे एक तरीके का नैचुरल मॉर्फिन होंगे, ये पेशेंट को की करवाता है, खुश करवाता है। ठीक है, आप कहते मूड स्टेबलाइजर की है एंडोरफिन्स। उस तो बाद आ गया अपने को एंडोजीनियस ओपियोइड्स। ओके, एंडोजीनियस ओपियोइड्स की होंगे है दैट आर फंक्शन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, पिट्यूटरी ते हाइपोथैलेमस इन्हों की करता है प्रोड्यूस करता है, ये की करते एक एनर्जेसिया प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो की करते हैं हेल्प करते हैं, मतलब कि अगर अपन कोई पेन हो रही है कितों, ठीक है, अपनी बॉडी उस पेन को किवें कंपनसेट करती है विद द हेल्प ऑफ एंडोजीनियस ओपियोइड्स। एंडोजीनियस ओपियोइड्स ते एंडोरफिन्स की होंगे है जो अपनी बॉडी के नैचुरल पेन किलर्स होंगे है। ठीक है, लेकिन अगर अपन रात को कोई पेन हो रही है कितने, तो अपनी पेन सही हो जाती विदाउट ईवन टेकिंग द मेडिसिन, सो किवें सही होंगी है एंडोरफिन्स नाल ते एंडोजीनियस ओपियोइड्स नाल। ठीक है, उस बाद आ गया अपने को एक इत्थे लिखा होया सबस्टांस पी। सबस्टांस पी की है एक न्यूरोट्रांसमीटर है इन अ पेन ट्रांसमिशन पाथवे, मॉर्फिन ब्लॉक इट्स रिलीज। सबस्टांस पी भी की होंगे एक न्यूरोट्रांसमीटर ही है पेन के ट्रांसमिशन, पेन अगे अगे ट्रांसमिट होंगी है ना, तो पेन अपन फील होंगी कि अपन पेन हो रही है, अगर मैंने मेरे हाथ से पेन हो रही है, मेरी लत्त से पेन हो रही है, ठीक है, या मेरी चेस्ट से पेन हो रही है, तो हर एक चीज़ किवें अपन पता लगूगा मेरे ब्रेन में विद द हेल्प ऑफ केड़ा न्यूरोट्रांसमीटर सबस्टांस पी। इसी करके जो पेशेंट नशे वाले होंगे ना, जो मॉर्फिन्स के होंगे, जो ओपियोइड्स के होंगे, उन्होंने पेन ही नहीं फील होंगे। क्यों? एक तो मॉर्फिन की करता है पेन को किल कर देंगे, दूसरा की करता है वो सबस्टांस पी को की करता है ब्लॉक कर देंगे। तो सबस्टांस पी को ब्लॉक करने का की मतलब है कि जी पेन दी इंपल्सिस है ना, वो पेन दी जी मैसेजेस मेरे ब्रेन तक ही नहीं जा रहे। ठीक है, मॉर्फिन की करता है सबस्टांस पी को ब्लॉक कर देंगे। क्यों? क्योंकि सॉरी, मॉर्फिन क्या करता है, ਜਿਹੜੇ पेशेंट नशे वाले होंगे, ड्रग अब्यूजर्स होंगे, मॉर्फिन लै रहे होंगे ज़्यादातर, वो की करते हैं सबस्टांस पी को ब्लॉक कर देंगे मॉर्फिन। इसी करके जो ड्रग डीलर्स होंगे उन्होंने पेन का एहसास ही नहीं हो रहा, इसी करके वो निडल्स लगाई जा रहे विदाउट हैविंग अ पेन, क्योंकि उन्होंने जो पेन ट्रांसमिशन वाला पाथवे सीगा वो ब्लॉक हो चुका। फिर आ गया आप पेशेंट की हुण मैंटल असैसमेंट किवें करनी है। कोई ब्रेन वाला पेशेंट आऊगा, ठीक है, जिन्होंने ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर होएगा, असैसमेंट किवें करनी है आप, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि उन्होंने आप जनरल एक्सप्रैशनस देखने हैगे है। ठीक है, तो उस तो बाद आप देखना है कि उनकी अपीयरेंस किवें हैगी है। ठीक है, उनके बोलन का तरीका, अगर वो कॉन्शियस है, अवेक है, असलीप है या कोमेटोज है। ठीक है, मोटर विच आप देख सकते हैं कि हर एक उनका बॉडी पार्ट वधिया तरीके मूव कर रहा है, उनका बॉडी पोस्चर स्ट्रेट है कि बैंड हैगा थोड़ा जिहा। ठीक है, उन्हें ड्रेस अकॉर्डिंग टू द वैदर पाई हुई है। ठीक है, हाइजीन उनकी सही है, फेशियल एक्सप्रैशन उनका सही है, वो सही बोल रहा है, क्यों रुक रुक के बोल रहा है, क्यों हेजिटेट करके बोल रहा है, या वो स्लर्ड स्पीच है। स्लर्ड स्पीच होएगी तो उन्होंने काहदा रिस्क होएगा, मेनली स्ट्रोक का। फिर आगे अपने को कोगनीशन। कोगनीशन में आप की देखना है कि उनकी ब्रेन की जो फंक्शनिंग प्रॉपर वे नाल हो रही है, टाइम प्लेस पर्सन तो वो ओरीएंट है, ये पता है कि सिचुएशन की हो रही है। जो मोस्टली ब्रेन डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट होंगे जिन्होंने कोई मैंटल प्रॉब्लम होंगी है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं अपना मूड सैट करते। मतलब कि अगर मान लो किसी की डेथ हुई है तो हस रहे होंगे, या ब्याह शादी में उच्ची उच्ची रो रहे होंगे जिवें किसी की डेथ होगी तो, है ना, तो ये सिचुएशन होंगी है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना मूड नहीं सैट कर पाते। ठीक है, सो कोगनीशन में देखना है कि टाइम प्लेस पर्सन तो ओरीएंट है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका जो मूड है वो सैट हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा। ठीक है, उन्होंने प्रॉपर वे नाल कैलकुलेशन करनी आती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये चीज़ हर एक चीज़ ये रजिस्टर्ड नर्स से चैक करनी है। क्यों? क्योंकि एक फॉर्म होंगे मैंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का उस वो तो। ठीक है, उस बाद उनका मूड देखना, वो एंगर तो नहीं है बेफालतू में, गुस्सा तो नहीं कर रहे, डिप्रैशन तो नहीं है, बेफालतू में खुश तो नहीं है। फिर ये आ गया अपने को लंबर पंचर। लंबर पंचर पीछे थोड़ा जिहा रह गया सीगा, फिर मैं हुण पूरा समझा देनी हाँ। देखो आप पीछे आर्केनॉइड स्पेस पढ़ी सीगी, है ना, वो आर्केनॉइड स्पेस विच आप की करांगे CSF लवांगे। ओके, बाय इंसर्टिंग द नीडल इनटू L3 एंड L4 लेवल। ओके, इंसर्ट आप जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड दा L3 L4 होंदा, उत्थे आप नीडल इंसर्ट करांगे, तो नीडल आर्केनॉइड स्पेस विचों की करूगी CSF नू लऊगी। हुण एज अ रजिस्टर्ड नर्स तुहाडा प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट ऑफ विच की काम है। प्री ऑफ विच आप पेशेंट को की कहना है कि तुसी अपना ब्लैडर एम्पटी करो। ठीक है, तो जिन्ने भी उनके कोएगुलेशन पैनल, मतलब कि जिन्ने भी उनके क्लॉटिंग टेस्ट है, PT, PTT
INR, ये सारे करवा के रखने सो दैट कि अपन पता लग सके कि पेशेंट ने क्लॉटिंग टाइम विच कोई प्रॉब्लम तो नहीं हैगी, कि पेशेंट को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं हैगा, आ ना हो कि CSF कर दी ब्लीडिंग हो जाए। इस करके टू मेक श्योर टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ हैमरेज एंड ब्लीडिंग अपन की करवाना होंदा, कोएगुलेशन पैनल करवाना टेस्ट। फिर ड्यूरिंग द प्रोसीजर अपन लेटरल रिकम्बिनेंट मीनस कि पेशेंट को प्रॉपर वे C शेप च लिटवा देना है, ठीक है। जो अपने गोडे होंगे उनकी चैस्ट ਨੂੰ टच करने चाहिए प्रॉपर वे नाल C शेप, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਚੈਸਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚੈਸਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਡੋਮਨ ਤੱਕ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਲੰਬਰ ਪੰਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟਲਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਨਸ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈਡੇਕ ਅਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਪੋर्ट करना है, ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। कुछ टाइम हेडेक होएगा ओके, बट उस तो बाद अगर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हेडेक रह रहा तो रिपोर्ट करना है, ठीक है। पोजीशन पहला ड्यूरिंग द प्रोसीजर आप लेटरल रिकम्बिनेंट पोजीशन देनी है, बट जदों पेशेंट का लंबर पंचर हो गया तो पेशेंट को की कहना है कि तुसीं बैड ते सीधा लेट जाओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, तो सारा का सारा एवें ही आता है। अपन ऑर्डर्स विच करना होंदा एरो पा के 1 2 3 पा के कि प्रोसीजर होंदा, इस करके पूरा देखना है कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर उन्होंने केड़ी पोजीशन देनी है पेशेंट नू, आफ्टर द प्रोसीजर केड़ी पोजीशन देनी है, बिफोर द प्रोसीजर पेशेंट नू केड़ी इंस्ट्रक्शंस देनिया ने, ठीक है। फिर आप ये देखना है कि पंचर साइड ते कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही हैगी आफ्टर द प्रोसीजर, कोई लीकेज तो नहीं हो रही CSF दी। फिर आ गया अपने को क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स अपने को होंदियां ने हाँ, अपने को क्रेनियल नर्व्स होंदियां ने 12, ठीक है। किहड़े होंदियां ने, लोकेशन याद रखने की अपन कोई जरूरत नहीं हैगी, किहड़े होंदियां ने, सॉरी यप हाँ, किहड़े होंदी अपने कोले ऑलफैक्टरी की करती है अपन स्मैलिंग विच हेल्प करती है। ऑप्टिक जो होंदी है, ऑप्टिक नर्व नाल आपां प्रॉपर वे नाल विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आपां देख सकते हैं। ओक्यूलोमोटर जिहड़ी नर्व होंदी, जिहड़ी ऑप्टिक होगी, जिहड़ी ओक्यूलोमोटर होगी, ठीक है, ते उस तो बाद जिहड़ी ट्रोकियल होगी ते एबड्यूसेंस होगी, ये हैगी ट्रोकियल ते ये हैगी एबड्यूसेंस। इहनूं आपां कहने आ 2 3 4 ते 6, ये सारियां किहदे रिलेटेड ने, आई दे रिलेटेड, ठीक है। जिहड़ी सैकेंड वाली अपने कोल क्रेनियल नर्व हैगी है उहदे नाल आपां देख सकते हैं। जिहड़ी थर्ड वाली क्रेनियल नर्व हैगी है उहदे नाल जो अपनी होगी आ ये लेंस हो गया, ठीक है, अपनी आई नूं आपां मूव कर सकते हैं इनवर्ड ते अप, लाइक दिस ऊपर मूव कर सकते हैं, ठीक है। ओक्यूलोमोटर नाल आपां अपनी आई नूं नीचे मूव कर सकते हैं, ते एबड्यूसेंस नाल आपां अपनी आईज नूं साइड मूव कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिक नाल आपां देखते हैं, थर्ड वाली नाल आपां अपनी आई नूं ऊपर मूव कर सकते हैं, फोर्थ वाली नाल नीचे ते सिक्स्थ वाली नाल साइड्स ते, ठीक है। उस बाद आ गया अपने को ट्राईजेमिनल नर्व। जो ट्राईजेमिनल नर्व होंदी है अपनी फेस ते रिप्रेजेंटेशन करती है, इहदे नाल आपां बोल पाते हैं प्रॉपर वे नाल, ठीक है, आपां खा पाते हैं, च्यू कर पाते हैं। फेशियल नर्व अपने फेशियल एक्सप्रैशंस देख रही है। फिर आ गया अपने को वेस्टिब्यूलो कोक्यूलर नर्व, ये कर दी अपने को ईयर दी। जो वेस्टिबल कोक्यूलर नर्व है आप की बोलते हैं, अकाउस्टिक नर्व भी बोलते हैं। अगर इस करके वेस्टिबुलो कोक्यूलर नर्व की जगह अकाउस्टिक लिखा हो तो घबराना नहीं हैगा, ये किहदे विच हेल्प करती है, ईयर विच, ठीक है, ऑडिटरी विच, ठीक है। उस बाद आ गया अपने को ग्लोसोफरेंजियल नर्व, ये अपना गैग रिफ्लैक्स देख रही है, अपने टंग नूं देख रही है। वेगस नर्व जो होवे वो की करती हैगी आपां नूं, जिवें आपां कहंदे वल्सलवा मैनूवर आपां करदे आ ना, तो वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, तो वो चीज़ आ गई। एसेसरी नर्व की करती है आपां नूं शोल्डर्स वगैरह की मूवमेंट विच हेल्प करती है। तो दूसरी की आ गई अपने को हाइपोग्लोसियल नर्व, ये सीगा अपना न्यूरोन्स का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यह सी अपनी अज की क्लास, ठीक है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हैगी, अगर किसी को कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही, तुम यूट्यूब पे वीडियोस थले कमेंट कर सकते हो, ठीक है, उड़ान नर्सिंग इंस्टीट्यूट के पेज पे जाके, या तुम कॉल कर सकते हो, ओके।
ਥੱਲੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਨੇ NCLEX ਲਈ, ਨੌਰਸੈਟ ਲਈ, BFUHS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨਿਊਰੋ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ।